Hello, welcome to the student. Now, today I am going to discuss about the transportation in human being. Okay? In previous classes I discussed about the respiration, but today I am going to discuss about the transportation in human being. All of you know the transportation means the carrying of matter, the carrying of material from one place to another place, that is called the transportation. But in human being, there are the many kinds of the transportation. Respiratory system, in respiratory system, where the oxygen and carbon dioxide are transported. But in जो है human being, another type of the transportation which is also known as the circulatory system. The other name of the transportation in human being, that is called the circulatory system. Okay? In circulatory system, which is done, which is performed with the help of tubes, heart, fluid. Okay? The circulatory system which is done or performed by the with the help of tubes, heart, fluid. Okay? Tubes, in tubes there are the three types: artery, vein और कैपिलरी. कैपिलरी जिसको कह सकते हैं ब्लड कैपिलरी. ट्यूब्स में तीन तरह के होंगे: आर्टरी, वेन, कैपिलरी. हार्ट, और हार्ट मेन पार्ट है. हार्ट के द्वारा ही जो है लिक्विड का ट्रांसपोर्ट होगा और जो भी होगा. और हार्ट में जो है क्या है, फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट होता है. और ये फ्लूइड जो है दो तरह के होंगे, ब्लड और लिम्फ. इन previous classes, standard 9, all of you study about the connective tissue. Fluid is a connective tissue, blood is also a connective tissue, lymph is also a connective tissue. So blood or lymph, in blood capillary, the blood is also known as the blood vascular system. In this system the transportation is in transportation the blood is transported from one part to the other part. Okay? From heart to the all the body parts, and from body parts to the heart, and again towards the lungs. But in lymph, it is also known as the lymphatic system. There are the two types of the fluid, blood and lymph. Here I am going to discuss about only the blood. Okay? In next classes we discuss about the lymph, and further we discuss about the function of heart. Okay? All of you know the blood. Blood is a connective fluid tissue. In this tissue which in the human body which circulate the blood. In human body system the blood circulates in the artery or veins or capillary. Okay? और वाई द ब्लड सर्कुलेट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन क्यों होता है. ओके? तो ये सर्कुलेशन होने के लिए हमारे जरूरी है कि द ब्लड विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी, इट इज हेल्पफुल टू अस, इट सप्लाई द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स. पहला अगर ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो ये हमारे पूरे बॉडी में क्या करेगा, ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा, और जो हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, जो मेन इसेंशियल कंपोनेंट चाहिए, वो इसको ब्लड के द्वारा हमारे पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंच जाता है. दूसरा, जब भी हमारे न्यूट्रिएंट वहां पहुंचता है तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं, तो इट आल्सो रिमूव द वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जब भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ब्रेकडाउन फूड का होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है उसको रिमूव वहां से करने में कौन हेल्प करता है, तो यही ब्लड ही हेल्प करता है. तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू which circulate in the human body. It help in the supply of the nutrient and oxygen to the body cells, and again further from the body cells it remove the waste material like carbon dioxide. Okay? और सबसे पहला आता है कि बात आप लोग पूछते हो कि ब्लड कितना है, तो जो भी एडल्ट होते हैं चाहे वो मेल हो और फीमेल हो, एटलीस्ट 5 to 6 लीटर्स ब्लड सभी के बॉडी में होता है. हम लोग जैसे भी जो भी हैं, हम लोग के शरीर में अगर ब्लड को ये किया जाए, मीजर किया जाए,
तो 5 to 6 लीटर ब्लड हम लोगों के शरीर में है। अब आती है बात की हमारे कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो अगर एक्चुअल में आप लोग जो भी पढ़े हो तो ये सारे बता दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में अगर अपने स्टैंडर्ड के साथ पढ़ें तो हमारे ब्लड के सबसे पहले हम दो कंपोनेंट बांटेंगे। पहला है ब्लड कॉर्पसल्स और दूसरा है प्लाज्मा। ओके, ब्लड कॉर्पसल्स और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? ऐसे हम लोग सीधे जानते हैं ब्लड कॉर्पसल्स नहीं बोल करके सीधे बोलते हैं प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो प्लाज्मा तो एक है, और वही जो ब्लड कॉर्पसल्स है, वो ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो तीन कंपोनेंट में है, तीन कंपोनेंट में डिवाइड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं? इसको जनरली एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी इट इज ऑल्सो नॉन एज द एरिथ्रोसाइट्स, इसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इस सेल्स का, इस कॉर्पसल्स का, आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ये कॉर्पसल्स जनरली इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और ये जो है आरबीसी जो है ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। इसमें इसका कलर, आरबीसी जनरली जो है रेड कलर के होते हैं, और रेड कलर का कारण क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन में आयरन जो है वो आयन पाए जाते हैं, और आयरन का जो कलर क्या होता है? आयरन और हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन है, आयन के रूप में है, जिसके कारण इसका कलर जो हो जाता है रेड हो जाता है। और अब बात आती है कि आरबीसी बराबर जाते हो, कभी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ब्लड टेस्ट के लिए भी बोलता है और बोलता है कि इसके ब्लड में तो ये 4 ग्राम 4 mgr या इतना ही आरबीसी है। तो एक्चुअल में हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए? एक्चुअल हमारे बॉडी में जो है मेल में मिनिमम कितना होना चाहिए? 100 ml में होता कितना है? 15 मिलीग्राम। 15 एजी जो है एडल्ट मेल में होता है, और फीमेल में 12 to 13 mg आरबीसी पाए जाते हैं। ओके, इन द मेल द टोटल amount of the RBC which are present in the 15 milligram, but in female 12 to 13 milligram ये होते हैं। अगर इसमें कम होते हैं तो उसकी हमको क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात आती है कि आरबीसी जो है उसका लाइफ पीरियड कितना? हमारे बॉडी में तो बराबर सेल्स बनते रहते हैं और वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं, तो ये जो लाइफ इसका स्पान है आरबीसी का जो बनते हैं एक बार, वो कितने पीरियड तक, कितने दिनों तक जो है उसका लाइफ चलता रहता है? इसका लाइफ स्पान जो है 120 डेज, 120 डेज माने एटलीस्ट 4 मंथ इसका लाइफ रहता है। एक बार बनता है तो वो आरबीसी जो है 4 मंथ तक उसका लाइफ चलता रहता है। लेकिन 4 मंथ के बाद धीरे धीरे करके ये डिस्ट्रॉय होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो ये डिस्ट्रॉय कहाँ होगा? या तो लीवर में डिस्ट्रॉय होगा या तो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होगा। स्प्लीन जो है ये 2 जगह डिस्ट्रॉय होगा, और स्प्लीन में ही सबसे ज्यादा आरबीसी बनता है। आरबीसी सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? स्टोर कहाँ होता है? स्प्लीन में। इस स्प्लीन को भी हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। याद रखोगे ठीक से कि आरबीसी क्या है? ये आपका क्या है? इसका जनरली शेप होता है सर्कुलर, नॉन न्यूक्लिएटेड, और इसमें हेमोग्लोबिन पिगमेंट पाए जाते हैं, और हेमोग्लोबिन में आयरन के प्रेजेंस के कारण उसका कलर भी जो है रेड कलर हो जाता है। और हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये हमारा जो ब्लड का आरबीसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन विच हेल्प इन द कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन, और इफ इट कैरी द ऑक्सीजन सो इट इज द ब्लड विच कैरी द ऑक्सीजन, ब्लड कैपिलरी, ब्लड बोल रहे हैं, ब्लड ट्यूब्स that carry the oxygen, that is known as the oxygenated blood. ओके, ये डिस्ट्रॉय कहाँ होगा? लीवर और स्प्लीन में। स्प्लीन को ब्लड बैंक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो नॉन एज द ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी इज नॉन एज द एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी इज नॉन एज द ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को ये जनरली इसका जो हमारा कलर क्या होता है? कलरलेस होता है, और इसका कोई शेप नहीं, इरेगुलर शेप में होते हैं। लेकिन इसका लाइफ जो है डब्ल्यूबीसी, इससे ज़्यादा इसकी संख्या होती है डब्ल्यूबीसी के हमारे बॉडी में, लेकिन इसकी लाइफ पीरियड जो है कम है।
12 hour to few days, 1-2 days, or just after 1-2 days it will be dead cell. तो कुछ ही दिनों में। और इसे जो कहते हैं फैगोसाइटोसिस, आप लोग पढ़े हो फैगोसाइटोसिस क्या है, अमीबा में सेल ईटिंग जो है फैगोसाइटोसिस है या सेल वॉमिटिंग, यहाँ पे इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्यों? क्योंकि इट किल्स, इट जो है इंगेस्ट द जर्म्स, जो भी हमारे ब्लड के में जो फूड कंपोनेंट के साथ या जैसे भी आता है जो भी जर्म्स वगैरह आते हैं उसको ये इनगल्फ कर जाता है, सो वो खा जाता है, नष्ट करता है। सो इट इज नोन एज द फैगोसाइटोसिस बिकॉज इट इंगेस्ट द germs. So it is also known as it fight against the germs, kill the germs. So we cannot suffer from the any types of the disease. We are generally free from the disease. So it is also known as the soldier of the body. ये हमारे बॉडी का सोल्जर है जो किसी भी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, उससे हमें सुरक्षित रखता है। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आती है बात फिर उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स। ये भी कलरलेस पार्ट है, इस नॉन न्यूक्लिएटेड है, इस सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नॉन न्यूक्लिएटेड है और इसका लाइफ जो है ये 7 to 10 डेज। आरबीसी का लाइफ कितना है 120 डेज, डब्ल्यूबीसी का लाइफ है 12 आवर टू फ्यू डेज 1-2 डेज, और ब्लड प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पान है ये करीब 7 to 10 डेज इसका लाइफ है। अगर एक बार ब्लड प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में बनते तो 7 to 10 डेज वो चलता है, फिर वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन अगर ये हमारे ब्लड में ना रहे तो क्या होगा, अगर ये हमारे ब्लड में नहीं रहता तो अगर किसी तरह से एक्सीडेंटल कोई इंजरी हो जाती है तो द ब्लीडिंग इज स्टार्ट विच कैन नॉट बी स्टॉप। सो द प्लेटलेट्स विच हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। और जो भी है प्लगिंग द प्लेस ऑफ इंजरी, जो एरिया जो हमारा बॉडी का पार्ट जो इंजर्ड हो गया उसको भरने में भी हेल्प करता है, तुरंत वो रिकवर करने में भी मदद करता है। ये हमारा ब्लड प्लेटलेट्स का काम था। और अब बात आती है प्लाज्मा का। ये प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा हमारे बॉडी में हल्के लाइट पेल येलो कलर का एक लिक्विड फ्लो करता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा जनरली कैसा होता है, अल्कलाइन इन नेचर, और अल्कलाइन नेचर है जिसमें पीएच इसका वैल्यूज कितना होता है 7.4। 7 अगर किसी का पीएच है तो वो न्यूट्रल है, 7 से बिलो है तो ये क्या है, एसिडिक नेचर है, मोर देन 7 है तो वो अल्कलाइन इन नेचर है। उसके बाद इसमें प्लाज्मा में जो है 55% ब्लड प्रेजेंट है और इसमें जो है 92% वाटर और 8% जो है कुछ सॉलिड घुले रहते हैं। अब ये सॉलिड क्या हो सकता है, तो सॉलिड में हमारे जो भी भोजन जो लेते हैं उसमें प्रोटीन हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, हमारे वेस्ट मटेरियल जो बनते हैं वो होंगे, सॉल्ट होंगे, गैस होंगे, हार्मोन होंगे, सारे हमारे इसी 8% में ये सॉलिड इसमें घुले हुए रहते हैं। और इसमें प्लाज्मा में एक चीज पाए जाते हैं हिपेरिन। हिपेरिन आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। आप कहोगे कि हमारे जो ब्लड कैपिलरी में, ब्लड आर्टरी में, वेन में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो अंदर क्लॉट क्यों नहीं करता जबकि वहाँ पे प्लेटलेट पाए जाते हैं, ये हेल्प करता है क्लॉटिंग में, तो ये क्यों नहीं क्लॉट करता है? तो कारण क्या है कि यहाँ पे जो पाए जाते हैं हिपेरिन विच डज नॉट अलाउ टू क्लॉट द ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल। हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ये ब्लड को क्लॉट करने नहीं देता है, ये किसके कारण, हिपेरिन के कारण। तो ये टोटल हमारे ब्लड, याद रखोगे कि हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ये जो है 3 चीज़ों के कंपोनेंट है, ट्यूब, हार्ट, फ्लूइड। ट्यूब्स में है आर्टरी, वेन, कैपिलरी, और हार्ट तो है ही। फ्लूइड में 2 तरह के फ्लूइड का फ्लो करता है, ब्लड का और लिम्फ का। ब्लड जिसमें फ्लो करता है उसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, लिम्फ जिसमें फ्लो करता है उसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। फिर ब्लड के जो कंपोनेंट कौन कौन है, तो एकदम आप लोग सिंपल वे में बोलते हो कि ब्लड के 4 कंपोनेंट है, प्लाज्मा, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो इसको पहले हम लोग 2 भाग में क्लासीफाई करते हैं, एक को कहते हैं ब्लड कॉर्पसस, दूसरे को कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड कॉर्पसस के भी 3 भाग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट, और ब्लड प्लेटलेट्स जो है ये टोटल आप लोगों का इस तरह है। अब टोटल एक वे में अगर कहा जाए तो ब्लड के
कौन कौन से काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। ओके, तो इसको फंक्शन भी कर दे रही हूँ। तो सबसे पहला ब्लड का क्या है, पहला ब्लड का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट। और इस न्यूट्रिएंट में क्या चीजों का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, सबसे पहले इसमें जो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या चीजों का हो सकता है, हमारे बॉडी में जो भी ग्लूकोज का ट्रांसफर हो रहा है एमिनो एसिड का होगा, फूड जो बन रहा है उसको कहते हैं ग्लूकोज एमिनो एसिड। उसके बाद सॉल्ट मिनरल, ये चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन इसमें किस चीजों का होता है, तो ये दूसरा क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है और ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाकर के फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। तीसरा ट्रांसपोर्ट क्या चीज होगा, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कैपिलरी से वहां से निकाल रहा है। फिर जो है ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को वहां से रिमूव करने में भी मदद कर रहे हैं। फिर हमारे ब्लड के द्वारा भी क्या चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स का। फिर इसके जो नेक्स्ट वर्क क्या है, हमारे बॉडी में, बॉडी के जो टेम्परेचर है बॉडी में वेस्ट मटेरियल को मेंटेन करता है। वेस्ट मटेरियल को मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ये सारे हमारे ब्लड के फंक्शंस हैं। ये सारे चीजों को अच्छी तरह से कर लोगे। ओके, थैंक यू।